خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مولوٹن کچہری فلائی اوور پر آلو کی بوریوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی۔ ٹرالی میں موجود تمام بوریاں سڑک پر پھیل گئیں۔ فلائی اوور بند ہونے سے ٹریفک کی روانی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ مولوٹن کچہری فلائی اوور پر آلو کی بوریوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی ہے۔ ٹرالی میں موجود تمام بوریاں سڑک پر پھیل گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ زین بتائیے۔ جی بالکل، ماڈل ٹاؤن کچہری فلائی اوور پر آلو سے بھری جو ٹریکٹر ٹرالی ہے وہ لٹ گئی اور ٹریکٹر ٹرالی میں رکھی آلو کی بوریاں جو ہے وہ الٹ جانے سے سڑک پر جو ہے وہ پھیل گئی۔ سڑک پر پھیلنے سے فلائی اوور ٹریفک مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو گیا۔ فلائی اوور بند ہونے سے چونگی سے آنے والی ٹریفک معطل ہو گئی اور 2 گھنٹے بعد ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی اور آلو کی بوریاں سڑک پر ہٹا کر ایک ٹریک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بحال کیا، جبکہ ٹریکٹر ٹرالی الٹ جانے کے بعد ڈرائیور جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ جی آپ کا شکریہ زین۔ کینگروز کے چھکوں نے انگلش پلیئرز کے چھکے چھڑوا دیے۔ آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جوش انگلش نے 86 گیندوں میں 120 رنز ناٹ آؤٹ سکور کر کے ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ گلین میکسویل 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا نے 352 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 48ویں اوور میں حاصل کیا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا میچ میں لاہور کا جوش و جذبہ دیدنی قذافی اسٹیڈیم میں 26,000 سے زائد شائقین نے میچ دیکھا۔ آسٹریلیا کی 2009 کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں پہلی جیت۔ کینگروز نے انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو انگلش ٹیم نے بین ڈکٹ کے 165 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت 351 رنز بنا کر چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ کا بڑا اسکور بنایا۔ جو روٹ نے 68 اور جوس بٹلر نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ آسٹریلیا کی جانب سے بین ڈوارشیس نے 3 اور ایڈم زمپا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں کینگروز کی 2 وکٹیں 27 رنز پر گر گئیں۔ ٹریوس ہیڈ 6 اور اسٹیو اسمتھ 5 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ لیبوشن اور میتھیو شارٹ نے ٹیم کا اسکور 122 رنز تک پہنچایا۔ میتھیو شارٹ 63، لیبوشن 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جوش انگلس اور ایلیکس کیری نے 146 رنز کی شراکت داری کر کے آسٹریلیا کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ آسٹریلیا نے 47.3 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کیا۔ ایلیکس کیری نے 69 رنز بنائے۔ جوش انگلس 120 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ گلین میکسویل نے 15 گیندوں پر 32 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ جوش انگلس میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ٹیم فارم میں ہے، پاکستان ضرور جیتے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان۔ بولے پاکستان ہارے یا جیتے ہم ان کے ساتھ ہیں، پاکستان جیت جائے یہی بڑا انعام ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اچھی گیم ہوگی، ہماری ٹیم پوری طرح تیار ہے، مشکلیں آتی ہیں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جیتے گا۔ بھارت کے خلاف میچ جیتیں یہی پاکستان کے لیے بڑا انعام ہے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ٹیم جیتے یا ہارے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کا بڑا مارکا آج ہوگا پاک بھارت ٹاکرا۔ دونوں ٹیمیں دوپہر 2 بجے دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ اعصاب شکن مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین نے نظریں دبئی اسٹیڈیم پر جما لیں۔ ہر پاکستانی قومی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید۔ دونوں ٹیمیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں 5 بار مد مقابل ہیں۔ شاہینوں نے 3 اور بھارت نے 2 میچز میں فتح سمیٹی۔ پاک بھارت میچ سے قبل پاکستان کا بھارت کو خیر سگالی پیغام۔ پاکستان نے بھارت کے 22 ماہی گیروں کو رہا کر دیا۔ واگا بارڈر پر بھارتی ماہی گیروں کو بھارت کے حوالے کیا گیا۔ بھارتی ماہی گیروں کو ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا۔ رہا ہونے والے بھارتی ماہی گیروں نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ بھارتی ماہی گیروں کو پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں سب سے بڑا پاج ہوگا، گورنر پنجاب کا قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بولے انڈیا پاکستان کا روایتی حریف ہے، اس کو ہرانا ضروری ہے۔ پوری قوم کی دعائیں قومی ٹیم اور کپتان رضوان کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی پرچم بلند ہوگا اور انشاءاللہ قومی ٹیم کامیاب ہوگی۔ انڈیا اور پاکستان کا چیمپئنز ٹرافی میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا میچ ہے۔ انڈیا اور پاکستان روایتی حریف ہیں اور پہلے کئی دفعہ پاکستان نے انڈیا کو پچاڑا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی پوری قوم اپنی ٹیم کے ساتھ ہے، کپتان رضوان صاحب کے ساتھ ہے، پوری قوم کی دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بلند ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی پاکستان کو ہوگی۔ ہماری نیک تمنائیں، دعائیں، خواہشات ساری پاکستانی ٹیم کے ساتھ۔
वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अहम इकदाम। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज 19 अहम टास्क पूरे करेगी। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन का जिम्मेदार भी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अहम इकदाम। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगा। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन भी इसके जिम्मा होगी। आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। वर्क फोर्स 60,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होगी। मरीज और मरीजों का मुस्तनिद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। मौजूदा हेल्थ सर्विसेज से 47% आबादी कवर जबकि 53% अनकवर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म भी दे दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब के शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ौज के जवान हमारा फ़ख्र है। मुल्क के बहादुर सपूत शुजाअत की लाजवाल मिसाल है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने की जानिब सफ़र का आगाज़। पंजाब हुकूमत का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लखोडेर में आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। UNEP और जर्मन ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल वफद ने सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात की। सीनियर वजीर ने कहा पंजाब हुकूमत कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इससे आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। प्रोग्राम से शजरकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आलमी सरमायाकारी होगी। इलेक्ट्रिक और सोलर इनकलाबी इकदाम के बाद लैंडफिल साइट्स पर मेथीन गैसेस के खात्मे के लिए काम शुरू किया है। मरियम नवाज माहौल दोस्त पंजाब के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। UNEP और जर्मन ऑफिशियल्स ने पंजाब को आलमी कार्बन मार्केट का हिस्सा बनाने के लिए तकनीकी और माली मुआवनत का ऐलान किया। LWMC के साथ लखोडेर लैंडफिल को कार्बन क्रेडिट में बदलने पर इत्तफाक हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वफद की आमद और ताउन का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब ने दस्तावेज़ात में धोखाधही और जालसाजी को रोकने के लिए इकदाम तेज़ कर दिए। नोटरीज़ के मामलात विफाकी हुकूमत के बाद हुकूमत पंजाब भी देखेगी। सदारती ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए नोटरीज़ एक्ट तरमीमी के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश किया गया। दस्तावेज में धोखाधही और जालसाजी रोकने के लिए नया हुकूमती फार्मूला। नोटरीज के मामलात वफाकी हुकूमत के बाद अब हुकूमत पंजाब भी देखेगी। सदारती आर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए नोटरीज तरमीमी एक्ट के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक नोटरीज की निगरानी सेक्रेटरी महकमा दाखिला या सेक्रेटरी के मुकर्रर करदा अफसरान करेंगे। बगैर लाइसेंस के नोटरी का काम करने वाले को 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। नोटरीज 3 साल के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर हटाया भी जा सकता है। नोटरी का काम दस्तखतों की तस्दीक, कागजात कापी की तस्दीक, इकरारनामों की तस्दीक, बैनुल अक़वामी कागजात वगैरह की तस्दीक करना होता है। नोटरी की खिदमात आमतौर पर बैंक, अदालत और दीगर कानूनी मामलात में इस्तेमाल होती हैं। तरमीम का मकसद नोटरीज के काम को मुनज़्ज़म, शफाफ और मुअस्सर बनाना है। नोटरीज सदारती आर्डिनेंस 1961 के तहत अभी ये खिदमात वफाक के पास हैं। नोटरीज की खिदमात के लिए बिल मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन का मामला। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहती है ओगरा से इख्तियारात लेकर कंपनियों को दिए जा रहे हैं। 15,000 स्टेक होल्डर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को डीरेगुलेशन की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सदर पंजाब चौधरी इरफान इलाही ने कहा कि हाई ऑक्टेन डीरेगुलेट है। हुकूमत ने जो मार्जिन दिया ₹2.64 है। कंपनी हमें कम मार्जिन देती है। भारत, यूरोप और अमेरिका में तरीकाकार बिल्कुल अलग है। वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से कम कर देते हैं। कोई पहली 15 का लिहाज नहीं। और कभी हमें ₹2 देते हैं, कभी हमें ₹5 देते हैं। इसीलिए मार्जिन हमें, जबकि हमारा मार्जिन ₹8.64 है। और बाहर अगर डीरेगुलेशन है, मतलब यूरोप में, इंडिया में, अमेरिका में, तो वो ये ऐसे नहीं है।
सदर लाहौर चौधरी नुमान मजीद ने कहा कि कंपनियों की इजारादारी कायम करने के लिए ये किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर जानजेब मलिक ने कहा कि मोबाइल ऑयल या इंजन ऑयल डीरेगुलेट है। इसकी कीमत चंद साल में 100 रुपए लीटर से 900 रुपए लीटर तक पहुँच चुकी है। क्वालिटी का इशू चलता रहता है, खासकर पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है। तो जो सस्ता बेचने के चक्करों में फिर जो है वो मिलावटें भी होंगी और जो है ना डीरेगुलेट करके जो है ना ये समझ लें कि सारा कुछ जो है ना वो कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं और चेक एंड बैलेंस कोई नहीं रहेगा और उससे जो है वो अल्टीमेट जो नुकसान है वो आवाम का ही होगा। इंजन ऑयल जैसे हम मोबाइल ऑयल भी कहते हैं, वो आज तक कभी भी कम नहीं हुए, हमेशा ज़्यादा ही हुए हैं। वेयर एज पेट्रोल और डीजल हर पहली को और 15 को इंटरनेशनल मार्केट के तनासब से कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी कि एक लीटर का डब्बा है इसका मोटर बाइक्स का, वो 1 लीटर का डब्बा आज से 6 साल पहले मैंने अपने पंप पर 100 रुपये का बेचा हुआ है। आज उसकी प्राइस 950 रुपये है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत कीमतों के तयन से आज़ाद होना चाहती है तो पंप मालिकान को भी ऑयल कंपनियों से आज़ाद करे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 25 फरवरी से 1 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 से 28 फरवरी के दौरान लाहौर, टोबा टेक सिंह, झंग, फैसलाबाद, शेखुपुरा, नारोवाल, मियांवाली और सियालकोट में बारिश मुतवक्के। सरगोदा, बकर, खुशाब, गुजरांवाला, गुजरात में बारिश का इम्कान। 25 से 27 फरवरी तक मुल्तान, डेरा गाजी खान, पाकपतन, उकाड़ा और बहावलनगर में बारिश हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मलिक आसिफ नस्वाना 7050 वोट लेकर सदर मुंतखब। आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल 6460 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब करार। फ़ारूक इलियास चीमा ने सेक्रेटरी की नशिस्त जीत ली। सेक्रेटरी फनास की नशिस्त पर शुएब कम्बोह बिला मुकाबला कामयाब। लाहौर हाईकोर्ट बार का इंतखाबी दंगल, प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मलिक आसिफ नस्वाना ने जीत लिया। आसिफ नस्वाना 7050 वोटों से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल 6460 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की निशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा 8255 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी की निशिस्त पर फारूक इलियास चीमा 6833 वोट हासिल करके सुरखरू ठहरे। सेक्रेटरी फाइनेंस की निशिस्त पर हाम बिन शुएब कम्बो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। रिजल्ट के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामी वकला ने खूब जश्न मनाया। इलेक्शन में वोटर्स ने बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन बोर्ड की मेंबर खवातीन वकला का कहना था कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि वाइल बेशक बायोमेट्रिक के बाद भी हम लोगों ने जो वकील भाई हैं उनका एक तो हमने CNIC चेक करना है, दूसरा उनका पंजाब बार काउंसिल का कार्ड चेक करना है, अगर वो नहीं है तो हाई कोर्ट का जो है लाइसेंस चेक करना है। पहले उसका कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक होती है, फिर उसके कवायद सामने आ जाते हैं, फिर वो अपने कैंडिडेट को चूज करता है और वोट कास्ट करता है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कुल 30,763 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 13,602 वोटर्स ने वोट डाला। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।